Hallelujah. Thank you, Jesus. Greetings to all of you in Jesus' wonderful name. Hallelujah. आइए सब जुड़ जाइए. Let's start praying. दुआ करें. Hallelujah. Lord, we bless your holy name. Lord Jesus, we bless your holy name, Lord Jesus. We glorify your holy name, Lord Jesus of Nazareth. We seek your presence. We seek your anointing. Lord Jesus, we pray for your sacred anointing to come upon us in Yahusha's holy, mighty, and precious name. Your sacred anointing to come, Lord, as we congregate from all over India, from around the world, to glorify your name and to learn from your word. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नस्ब कितनी ही सूलियाँ. यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नस्ब कितनी ही सूलियाँ, मगर इस सलीबों के शहर में वो सलीब तेरी जुदा लगी. तेरा खून बरखा की रुत लगा. तेरा खून बरखा की रुत लगा. तेरी सांस बादे सबा लगी. हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी. मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी. मेरे साथ गाइए. तूने किस तरीके से पी लिया वो प्याला जो के न टल सका. तूने किस तरीके से पी लिया वो प्याला जो के न टल सका. तूने किस सलीके से जान दी कि ये मौत रब की रज़ा लगी. तेरा खून बरखा की रुत लगा. तेरा खून बरखा की रुत लगा. तेरी सांस बादे सबा लगी. हुई बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी. मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी. मेरे हक में हर्फ़े दुआ लगी. हालेलुया. स्वर्गीय पिता, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं. तू महान है स्वर्गीय पिता. तू दयालु है, तू कृपालु, तू करुणा से भरा है. स्वर्गीय पिता, तू विलंब से कोप करता है. इज़राइल के जीवित परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है. पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी दया को बना के रखता है. हालेलुया. तेरी रहमत अबदी है. हालेलुया. योर मर्सीज आर रिन्यूड एवरी मॉर्निंग. And they are not singular mercies, they are plural mercies.
They are abundant mercies. They are never exhausting, never ceasing mercies, Lord, that you shower upon us each morning, and they are made absolutely brand new. You never pour over us stale mercies, but fresh mercies each morning. Father, even though we don't deserve your mercy, we don't deserve your grace, we deserved your wrath and your anger, but thank you for your love, that you poured the anger that I deserved. Father, that judgment that was my portion, you poured it on Jesus of Nazareth. What a glorious exchange you made. You put Jesus in my place on the cross of Calvary. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी जगह, हमारी जगह यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। हमारी बदकारी उसके ऊपर डाली, हमारी लानतें, हमारे रोग, हमारे पाप, हमारे अधर्म प्यारे प्रेमी यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। हम तेरे नाम की महिमा गाते हैं, तुझे सजदा करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर देविंदर कुल्लर के लिए, उसके पति परमजीत के लिए। मे यू टच हिम। Father, I stand against meningitis. Jesus, you already paid the price for the healing of Mr. Paramjeet, that he might be healed. So, Lord, I bind Mr. Paramjeet to the atoning reality. I bind him to the finished work on the cross. I cover him under the blood of Jesus by faith, and I speak liberty, restoration, and healing to that man and to their two precious daughters. I command tuberculosis, you have no authority over their bodies. Because of Jesus of Nazareth, your authority, your domain is broken, and your power is shattered in pieces. You must take your hands off those two daughters in Yeshua's mighty name. Father, I pray for Sister Reena from Himachal Pradesh. Father, I pray for different people who are gathering from Middle East. Brother Gurcharan, I remember him before you. Lord, may you extend your mercy upon that man. And Father, for people who log on from Russia and from Caribbean island, from Britain, from Canada, from Australia, from Fiji, from Bangladesh, from different parts of the world, Father, I remember them all before your throne of grace and mercy. People from the United States, may your hand be upon them, Father. People from the European continent, from Belgium, other places in Europe, I remember them. I pray that you stretch forth your hand. Father, friends from Africa and other places, Lord, may you touch them with your mighty hand. तेरा अनुग्रह उनके ऊपर पोर आउट कर स्वर्गीय पिता। तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम की महिमा करते हैं, और जिनकी प्रार्थना विनतियां हैं प्रभु, उन सबको तेरे आगे उठाते हैं। सबकी प्रार्थना विनतियों को तेरे आगे उठाते हैं प्रभु। हालेलुया। अपने अनुग्रह रूपी हाथ को बढ़ा और छू खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बड़ा अद्भुत वचन मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, और आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट stick on the line, don't just vanish. God is going to speak to you in a very powerful way. परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है आज, और मैं चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य निकालें। जल्दी से आप वचन निकालते जाइएगा और पढ़िएगा। अपनी बाइबल रखें, नोटबुक रखें, मार्क द स्क्रिप्चर्स, टेक नोट्स, लिसन टू द वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength and kingdom of our God and the power of his Christ have come. Hallelujah. स्वर्ग में घोषणा की जाती है कि अब मुक्ति आ गई, अब सामर्थ आ गई, अब राज्य आ गया हमारे प्रभु का और हमारे मसीह का। हालेलुया। For the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. Hallelujah. एक बहुत खुशी की घोषणा की गई स्वर्ग में कि अब मुक्ति आ गई, अब सामर्थ आ गई, अब राज्य आ गया हमारे प्रभु का और हमारे पिता का। क्यों? क्योंकि वो जो भाइयों पे दोष लगाता था, कहां पे? स्वर्ग में। कब लगाता था? वचन में लिखा डे एंड नाइट, 24/7 आपके ऊपर कोई दोष लगाता था। कहां पे? स्वर्ग में। परमेश्वर के वचन में लिखा ही हैज बीन हर्ल्ड डाउन,
उसको गिरा दिया गया है। उसके पास अब आपको एक्यूज करने की कोई पोजीशन नहीं रही। मैं आपको ग्रीक टेक्स्ट में से दिखाना चाहता हूं कितनी गहराई है इस वचन के अंदर। ये जो वचन है रेवलेशन 12:10, यहां पे लिखा भाइयों पे दोष लगाने वाला। हालेलुया। आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है? शैतान के लिए सबसे जबरदस्त नाम क्या है? कतागोरियो। कतागोरियो, दोष लगाने वाला। आपको मालूम कतागोरियो का मीनिंग क्या है? देखिए, ध्यान से सुनिए। प्लेंटिफ, to charge you with offense before the judge. The one who charges you before the judge with offense, जो जज के आगे जाता है और आपके खिलाफ मुकदमा दायर करता है, और जो जज के आगे जाके आपके खिलाफ वैलिड सबूत देता है ताकि आप पे मुकदमा दायर किया जाए और आपके लिए सजा डिमांड करता है, वो कौन है? वो है हसथान, उसका नाम है शैतान। वो है एक्यूजर ऑफ द ब्रदरन, उसे स्लेंडरर कहा गया है। हालेलुया। वो क्या करता है? दोष लगाता है। आपको मालूम ये वर्ड जो है कतागोरियो, ग्रीक वर्ड, ये बहुत पावरफुल वर्ड है। कथा का मतलब होता है अपोज करना, वेहीमेंटली स्टैंड अगेंस्ट यू, ब्रिंग प्रपोजल अगेंस्ट एवरीथिंग दैट इज गुड फॉर यू। उसको ब्लॉक करना, उसे रोकना, उसके अंदर कानूनी प्रावधान लाके आपकी हर एक अच्छी चीज को रोकना। और आपका मालूम गोरियो जो वर्ड है, अगर इसकी रूट वर्ड देखेंगे इस वर्ड के, गोरियो के, तो इस वर्ड का असली मतलब क्या? अगोरा इसका रूट वर्ड है, अगोरा। अगोरा का ग्रीक में मतलब होता है मॉल, मार्केट प्लेस, बिजनेस, मर्चेंडाइज। आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपके सारे काम, आपकी सारी ब्लेसिंग, उसको शैतान लीगली ब्लॉक करता है। कहां जाके? स्वर्ग में जाके आपके खिलाफ कानूनी दस्तावेज इकट्ठे करता है, सबूत इकट्ठे करता है और स्वर्ग में पिटीशन दायर करता है आपके खिलाफ। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग के अंदर कोर्ट रूम्स हैं। वचन को ध्यान से पढ़ के देखें। वचन में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसमें यहोवा पिता बैठते हैं। द हाईएस्ट कोर्ट इन हेवन, द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द कोर्ट ऑफ द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, द कोर्ट ऑफ द डिवाइन काउंसिल, 70 एल्डर्स का कोर्ट है, कोर्ट ऑफ द किंग्स हैं। अलग अलग जुडिशियल न्याय प्रणाली है स्वर्ग के अंदर। न्याय प्रक्रिया बहुत गहरे लेवल पे स्वर्ग में चलती। पृथ्वी के ऊपर जो जुडिशरी है, हर कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, जुडिशरी है, ये सारी स्वर्ग की जुडिशरी की परछाई है। हालेलुया। तो ये भाइयों के ऊपर क्या करता है? दोष लगाता है। अब आप जरा ध्यान से देखें, ये आत्मा मसीह भाइयों के अंदर काम करती है। यही सेम आत्मा कतागोरियो, वो मसीह भाई जाके लांछन लगाते हैं, किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं। कई तो ऐसे हैं जो जानते भी नहीं किसी को, उनके बारे में बुरी बातें बोलते हैं। यदि किसी का कोई अनुभव हो, जानता हो, तो मैं समझता हूं कोई बात। जो कोई जानते भी नहीं, किसी का कोई संपर्क भी नहीं, वो भी क्या करते हैं? ये काम करते हैं जो काम प्रकाशित वाक्य 12:10 में कतागोरियो, एक्यूजर, करता है। लेकिन खुशखबरी क्या मनाई गई स्वर्ग में एंजल्स के द्वारा? कि जो भाइयों के ऊपर दोष लगाता था, ही हैज़ बीन हर्ल्ड डाउन फ्रॉम हेवन, स्वर्ग में से उसे निकाल दिया गया। वो आपके बिजनेस के खिलाफ, आपके कारोबार के खिलाफ, आपकी मर्चेंडाइज के खिलाफ, आपकी ब्लेसिंग के खिलाफ खड़ा है। ये कभी मत सोचिएगा शैतान आपके फेवर में है। ही प्राउल्स लाइक ए रोरिंग लॉयन सीकिंग whom he may devour। वो पाउंस करता घूमता है, गर्जते सिंह की नाई, ढूंढता है किसे फाड़ खाऊं। वो कभी आपका मित्र नहीं था, कभी आपका मित्र नहीं होगा। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं? पढ़िए एक वचन जल्दी से। मैं कोर्ट रूम के अंदर आपको लेके चलूंगा और कोर्ट रूम की ये शिक्षा हम कंटिन्यू करेंगे।
we'll go to the roots. I'll take you into the Hebrew words, deep into the Hebraic heritage के अंदर ले जाके इसके विषय में हम और सीखेंगे परमेश्वर के वचन को गहराई से। लेकिन आज मैं उसकी फाउंडेशन रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार निकालें, लूक्स गॉस्पल, लूका रचित सुसमाचार, हालेलुया। और उसका आप निकालिए 22 वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ लूका 22 का एक 31 से पढ़ता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 31 वचन से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। एंड द लॉर्ड सेड, साइमन साइमन, इंडीड Satan हैज आस्क्ड फॉर यू दैट ही मे सिफ्ट यू एज व्हीट। यीशु मसीह बात करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं सिमियोन सिमियोन। सिमियोन का मतलब होता है पानी में हिलने वाला सरकंडा, मैंने आपको बताया था। और यीशु मसीह उसका नाम बदल के करते हैं पेट्रोस। पेट्रोस का मतलब बोल्डर, बिग स्टोन जो हिल नहीं सकता। लेकिन पीटर जब अपने पुराने कैरेक्टर में चला जाता है, पीटर घमंड से भर गया है और यीशु मसीह को कह रहा है सारी दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और यीशु मसीह से कह रहा प्रभु तेरे संग ऐसा कभी नहीं होगा। जब यीशु मसीह बताते हैं कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, तो यीशु मसीह उसे डांटते हैं। तो वचन में क्या लिखा, प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, एंड द लॉर्ड सेड, साइमन साइमन, इंडीड जीसस इज एड्रेसिंग हिम with his old name because he has moved out of his new character and has jumped into the old one. तो यीशु मसीह से सिमियन सिमियन कहते हैं, indeed Satan asked for you, शैतान ने तुझे मांगा, शैतान ने तुझे मांगा। एक्सिटियो ग्रीक वर्ड है, एक्सिटियो। एक्सिटियो का मतलब यीशु मसीह कहते हैं पतरस से, शमौन से, शमौन शमौन तुझे एक्सिटियो किया। किसने? शैतान ने, हेवन के कोर्ट में। एक्सिटियो का मतलब क्या है? डिमांड फॉर ए डीप जुडिशियल प्रोब। कानूनी अर्जी डाली शैतान ने तेरे खिलाफ कि तेरे अंदर उसका बीज है घमंड। इसलिए परमेश्वर इजाजत दे कि शैतान सिमोन को अपने हाथ में ले। शैतान जाता है आपके खिलाफ रिट डालता है, एप्लीकेशन डालता है। उसके डीमन आपके मुंह की बातें सुनते हैं, जो आप नाजायज गलत बातें, फालतू बेकार बातें बोलते हो और जो काम करते हो उन्हें देखते हैं। आपके दिल में क्या है शैतान को नहीं मालूम, क्योंकि आपके दिल और गुर्दों को केवल यहोवा जानता है। वो आपके वर्ड्स इकट्ठा करते हैं, वो जो आप काम करते हो उन एविडेंस को कलेक्ट करते हैं उसके डीमंस और कोहोर्ट्स, एंड ही बिल्ड्स अ केस अगेंस्ट यू इन द हेवनली कोर्ट। तो प्रभु कहते हैं कि तेरे खिलाफ जुडिशियल प्रोब मांगी, जुडिशियल कस्टडी मांगी, रिमांड पे मांगा तुझे। किसने? शैतान ने। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं बट आई प्रेड फॉर यू, पर मैंने तेरे लिए दुआ की। यीशु मसीह आत्मा में हेवनली कोर्ट में गए और यीशु मसीह ने आत्मा में जाके पतरस के लिए, जिसका नाम अब शमौन हो गया है, प्रार्थना की। आपको मालूम प्रार्थना के लिए वर्ड क्या है यहाँ पे? दियोमाई, जिसका मतलब आई मेड ए पिटिशन, आई अपोज्ड द मूव ऑफ द बैरिस्टर हु वाज अगेंस्ट यू, द लॉयर हु filed a lawsuit against you. I went and I filed my petition that it should be overruled. समझ रहे हैं आप? बाइबल में ध्यान से सुनिए, हमने ज़्यादा प्रार्थना को ये समझा है, वेस्ट ने हमें यही सिखाया, वेस्टर्न लोगों ने, कि प्रार्थना एक वॉरफेयर है, रूहानी मुकामों में लड़े जाने वाली लड़ाई है प्रार्थना। प्रार्थना का ये स्वरूप हमने सीखा, दैट प्रेयर इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। वी लर्न दिस वेरी वेल। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में इब्रानी भाषा में, हिब्रू में, और नए नियम में ग्रीक भाषा में, और इसकी जो लैटिन ट्रांसलेशन है उसके अंदर भी प्रार्थना के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, 82% जो प्रार्थना के लिए वर्ड हैं हिब्रू में और ग्रीक में, वो जुडिशियल टर्मिनोलॉजीज हैं। प्रार्थना के लिए जो अल्फाज, जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं इब्री भाषा में, यूनानी भाषा में, वो अदालत के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। जैसे दरखास्त देना, जैसे अर्जी देना, जैसे पिटीशन करना, जैसे किसी कार्रवाई के खिलाफ सबूत डालना, जैसे विटनेसेस को भेजना, जैसे बेलर को रिक्वेस्ट करना, ये सारे हिब्रू और ग्रीक में वर्ड हैं।
80% से ज्यादा प्रार्थना कोर्ट रूम के अंदर डील होती है। सिर्फ 18% प्रार्थना स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। नियरली 82% प्रेयर इज ए जुडिशियल मैटर दैट इज सब्जेक्टेड टू द कोर्ट रूम। प्रार्थना कोर्ट रूम में, अदालत में होने वाली न्यायिक प्रक्रिया है। आपकी प्रार्थनाएं ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी हैं? क्योंकि जुडिशली आपके खिलाफ मुकदमा है। सेटन ने आपके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करके रिट डाली है हेवन में, और आपकी प्रार्थनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। आपको मालूम, जब आप प्रार्थना करते हो, मैंने आज सुबह बताया था, 3 रेल्म में कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रार्थना करते समय। व्हेन वी स्टार्ट प्रेइंग, देयर इज ऑपरेशन and there is an invisible warfare that unleashes in 3 realms: beneath the earth, up where the heavenlies is, heavenly realm में, पृथ्वी के नीचे, और heavenly कोर्ट रूम में। तीनों जगह वॉरफेयर शुरू हो जाती है। यहूदी लोग इसे समझते हैं कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना मल्ल युद्ध ही नहीं है। मल्ल युद्ध भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रेसलिंग भी प्रार्थना का एक रूप है। प्रार्थना के लिए जो हिब्रू भाषा में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। वो बताते हैं कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना का बड़ा स्वरूप कोर्ट रूम में की जाने वाली कार्रवाई है। आप दरखास्त डालते हो, आप अर्जी डालते हो, क्योंकि आपके खिलाफ कोई खड़ा है जो आपकी प्रार्थनाओं को अपोज कर रहा है और आपकी विनतियों को रोक रहा है। हालेलुया। मैं एक आपको दिखाना चाहता हूं पुराने नियम में से, मेरे साथ निकालें। टर्न टू बुक ऑफ जकरिया। जकरिया नबी की पुस्तक निकालिएगा जल्दी से। जकरिया नबी की पुस्तक, अगर मलाकी से पीछे की ओर जाएंगे तो जल्दी मिल जाएगी। निकाल लीजिए जल्दी से जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। यह कोर्ट रूम है। मैं आपको कई कोर्ट रूम दिखाऊंगा। कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग देखेंगे हम। कोर्ट रूम में प्रार्थना कैसे करना है वो भी सीखेंगे। इट इज गोइंग टू बी ए सेशन दैट वी विल कंटिन्यू इन सेवरल टीचिंग आवर्स। हालेलुया। और इस पे बहुत जबरदस्त गहराई और रहस्य आप सीखोगे। यीशु मसीह के नाम में मैं दावा करता हूं आपके साथ। पढ़ें मेरे साथ जकरिया नबी की पुस्तक 3 अध्याय। यहां लिखा, देन ही शोड मी जाशुआ द हाई प्रीस्ट standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to oppose him. क्या दर्शन देख रहा है जकरिया? जकरिया आपको मालूम कौन से समय नबूवत कर रहा है? आइजाया ज्यादा बुजुर्ग है, जिर्मिया उससे कम बुजुर्ग है, इजिकियल काफी जवान है। आइजाया और जिर्मिया बाबुल की गुलामी में नहीं गए, लेकिन इजिकियल जो है वो बाबुल की गुलामी में चला गया है और रोता है, प्रभु के आगे विलाप करता है। तो पवित्र आत्मा उसे यहाँ से पकड़ता है और उड़ा के लेके आता है यरूशलेम में, दिखाने के लिए कि यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर ने इतनी बड़ी विपत्ति क्यों भेजी और क्यों उस ग्लोरियस टेम्पल को तहस नहस किया। ये फिर किसी समय देखेंगे हम। जकरिया भी पीछे रह गया है नबी। जकरिया भी प्रार्थना कर रहा है और जकरिया को परमेश्वर अलग अलग दर्शन दे रहा है। जकरिया उस समय नबूवत कर रहा है जब एजरा, नहेमिया और जरूबाबिल 3 खुदा के खादिम लोग इस्राएली लोगों को 3 इंस्टॉलमेंट में वापस लेकर आए हैं ताकि यरूशलेम की शहरपनाह बनाई जाए और परमेश्वर के लिए हैकल या मंदिर, टेम्पल तैयार किया जाए। तो जब ये काम कर रहे हैं तो सीरिया से अपोजिशन आती है, सनबलाट, और अंदर से ही कुछ शैतानी लोग, यहूदी लोग खड़े होकर विरोध करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यह दर्शन देख रहा है परमेश्वर का नबी। तो जब परमेश्वर का दास आता है, जो जरूबाबेल है वो टेम्पल बनाता है, नहेमिया शहरपनाह को बनाता है, वॉल्स को बनाता है, और एजरा का काम होता है प्रीस्ट को चुन के निकालना और उन्हें शुद्ध करना, उन्हें यहोवा के लिए कॉन्सिक्रेट करना, अलग अलग प्रीस्ट को, लेवाइट को यहोवा के लिए निकालना। तो एजरा ये काम कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है उस समय, वो एक दर्शन देखता है। देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन इन द हेवनली रेल्म, देयर इज एन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। सो गॉड गिव्स हिम अ विजन। परमेश्वर उसे दर्शन देता है। क्या दिखाता है? देन ही शोड मी जोशुआ एट द राइट
Joshua the high priest standing before the angel of the Lord and Satan standing at his right hand to oppose him. क्या दर्शन देखता है परमेश्वर का दास कि एंजल ऑफ द लॉर्ड, मैंने बताया था ये एंजल ऑफ द लॉर्ड कौन है आपको, हामलिक, ये थियोफनी है। यीशु मसीह मरियम की कोख में जन्म लेने से भी पहले का है। मरियम की कोख में सिर्फ उसकी मानवता का आगाज हुआ है, वो इटर्नल है। यीशु मसीह अलग अलग समय दिखता है लोगों को, ये यीशु मसीह है, द किंग ऑफ ग्लोरी, थियोफनी है ये। यीशु मसीह खड़ा है और यीशु मसीह के राइट हैंड कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है, टू अपोज हिम। और क्या लिखा है वहां पे? कौन खड़ा है? हाई प्रीस्ट खड़ा है, उसका नाम है जोशुआ। हाई प्रीस्ट ने टेंपल की सारी एक्टिविटीज को शुरू करना है। हाई प्रीस्ट कॉन्सिक्रेट हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, तब यहोवा परमेश्वर की टेंपल में इबादत शुरू हो सकती है। लेकिन शैतान ने परमेश्वर की इबादत को रोकने के लिए अडिंगा डाला हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं वजह क्या है। ये कोर्ट रूम चल रहा है, देखिए ध्यान से। एंड द लॉर्ड, दिस इज योड हे वावे, ये यहोवा पिता है। एंड द लॉर्ड सेड टू सेटन, किसको कहा? हसतान हिब्रू वर्ड है। लॉर्ड सेड टू सेटन, सेटन ये योड हे वाव है। अब ध्यान से सुनना ये वचन। एंड द लॉर्ड सेड टू हसतान, सेटन, द लॉर्ड रिब्यूक यू सेटन। दो लॉर्ड हैं यहां पे, दो याहवे हैं। एक याहवे है पिता यहोवा, दूसरा याहवे है पुत्र यहोवा। हालेलुया। जीसस ओनली वाले इसका जवाब नहीं दे पाते इन आयतों का। दोनों हैं, पिता यहोवा और पुत्र यहोवा। पुराने नियम में बाइनरी याहवे हैं, टू याहवे, द सन याहवे एंड द फादर याहवे। यहां पे लिखा है, क्या लिखा है यहां पे? द लॉर्ड रिब्यूक यू, द लॉर्ड योडे वावे सेड अनटू सेटन, द लॉर्ड रिब्यूक यू सेटन। द लॉर्ड हु हैज चोजन जेरूशलम रिब्यूक यू, इज दे plucked out of the fire। यहोवा, यीशु मसीह कह रहा है शैतान तुझे यहोवा पिता झिड़के, डांटे। क्या ये वो लकड़ी नहीं है जो आग में से निकाली गई है? गुलामी की आग में से निकाल के लाया है। जब लकड़ी को आग में से निकाला जाता है ना, उसके ऊपर बर्न होने के निशान होते हैं, क्योंकि वो आग में सुलगी हुई लकड़ी है। तो यहोवा यीशु मसीह कहता है यहोवा पिता से कि तू शैतान को डांट, हर शैतान को। अब क्या लिखा है? नाउ जोशुआ वॉज क्लोथ्ड विद फिल्दी गारमेंट्स एंड वॉज स्टैंडिंग बिफोर द एंजल। कारण क्या था? क्यों दोष लगा रहा है? कौन दोष लगा रहा है? हसतान। कहां खड़ा है? राइट हैंड पे। दोष क्यों लगा रहा है? क्योंकि कपड़े गंदे हैं। शैतान लीगलिस्ट है। जब तक आपके अंदर कोई लीगल समस्या नहीं होगी, शैतान आप पे दोष नहीं लगा सकता। जब तक आपके जीवन में कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, शैतान आपको छू नहीं सकता। लीगली Satan must find a legal flaw in your life. There has to be a legal breach on your part that Satan can touch you. Unless and until there is a legal breach, the heavenly court will not permit Satan to touch you ever. So Satan looks for legal permission from God. So he found Joshua the high priest has returned from the land of captivity and his clothes are soiled and they haven't walked with God. As they dwelt in the land of bondage and slavery, they built their own interpretations on the law of God called rabbinical law. They are carrying with them Talmud, the rabbinical law, which is not the true word of God. And they are soiled, they are completely contaminated spiritually. So Satan is accusing, शैतान दोष लगा रहा है। हालेलुया। कहां खड़ा है? राइट हैंड खड़ा है, दोष लगा रहा है, एक्यूजिंग। मैंने क्या बताया आपको क्या करता है शैतान? ग्रीक वर्ड है खता हगोरा। एक्यूजर, ही एक्यूजेज यू। खता हगोरा, ही अपोजेज योर मर्चेंडाइज, he opposes your business, he opposes your marketplace, he tries to shut down everything good that you do because he has found a legal flaw. तो हर शैतान को उसके कपड़ों के अंदर दाग दिखाई दिए हैं। समझ रहे हैं आप? ये कोर्ट रूम के अंदर काम चल रहा है। इसी तरह पीटर को मांगा किसने? हर शैतान ने हेवनली कोर्ट में। लिखा है कि तुझे क्या करे, 32nd वर्स लूक
20 सेकंड का 30 सेकंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा टू सिफ्ट यू। जैसे हमारे इधर पंजाब में छज होता है, उसके अंदर गेहूं को डाल के ऐसे उछाल उछाल के छज विच पा के छटना कहंदे उन्होंने। शैतान छज विच पा के छटना चाहता सी किसे? पीटर को, बिकॉज ऑफ द प्राइड, ingrained pride in Peter. So Jesus went up in the heavenly court, and Jesus, what did Jesus do? He said, I prayed, and the Greek word is diomai. Jesus put a petition before the Father so that the move of Satan might be stopped. But what happened? Did God stop did God stop Satan from sifting Peter? क्या परमेश्वर ने शैतान को रोका कि पतरस को सिफ्ट ना करे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि शैतान तुझे सिफ्ट करना चाहता था, मैंने लेकिन तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास ना जाता रहे। अगर यीशु मसीह पिता के आगे पटिशन ना डाल के आते शैतान के विरोध में, तो पीटर भी जूडस इस्करियोट की तरह यीशु मसीह को एब्सोल्युटली डिनाई कर जाता। लेकिन जीसस ने प्रार्थना की कि उसका फेथ ना जाता रहे, और जब वो लौटे तो भाइयों को स्ट्रेंथन करे। He went through the process, but Jesus saved him from perdition. Hallelujah. यीशु मसीह वचन में लिखा है, अब यहां हम पढ़ते हैं जकरिया में कि राइट हैंड पे कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है। लेकिन अब जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, आपके और मेरे पापों का कफारा बना, आपके मेरे गुनाह, आपकी मेरी बदकारियां, आपकी मेरी लानतें, आपके और मेरे सारे बुरे कामों की पूरी पेमेंट कर दी यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह के ब्लड को हेवन ने एक्सेप्ट कर लिया। एक ही चीज हेवन में पहुंची है पृथ्वी से, वो है जीसस का ब्लड। आपको मालूम एडम वर्ड का मतलब क्या होता है? मालूम आपको? मैंने आपको बताया था परमेश्वर ने मिट्टी से लेके गूंदा उसे बनाया। एडम is a very profound word in Hebrew. It is Aleph Dalet Mem. Aleph Dalet Mem. Aleph is the head of ox. Aleph is God. Aleph परमेश्वर है। और दलित और मेम का मतलब आपको मालूम क्या होता है? दाम, जिसका मतलब होता है ब्लड, खून। खून को दलित और मेम बोलते हैं। खून के आगे कौन लग गया? यहोवा। सो कहने से कि वो खून जो यहोवा ने क्रिएट किया, पारलौकिक खून एडम की बॉडी में, वो एडम का कोई बाप नहीं था, कोई मां नहीं थी। 23 क्रोमोसोम पिता से, 23 मदर से नहीं आए, XY फादर से नहीं इनहेरिट किया उसने, डायरेक्टली यहोवा ने उसे बनाया। अलफ दलित मेम आदामा, दामा ब्लड। आपको मालूम जब आदम ने पाप किया, आदम एक लाइट बीइंग था, रोशनी से बना था, उसकी सारी रोशनी कंजील होगी ब्लड के अंदर। उसका स्पिरिट बीइंग बाहर था और फिजिकल बीइंग अंदर था, लेकिन स्पिरिट बीइंग अंदर चला गया, फिजिकल बीइंग बाहर आ गया पाप के कारण। द लाइट डिपार्टेड, द ग्लोरी डिजर्टेड हिम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का ब्लड यहोवा का ब्लड है, पृथ्वी का नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के ब्लड का ओरिजिन अर्थली नहीं है, इट्स हेवनली ब्लड। इट रीच्ड हेवन। ब्लड पिटिशन करता है आपके लिए, सबसे जबरदस्त पिटिशन आपके लिए ब्लड करता है। ब्लड के अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। हेवन में कोई और नहीं जो आपको सपोर्ट कर सकता है। मैं बताऊंगा कुछ और भी हैं एंटिटीज हेवन में, फिर हम इस सेशन करेंगे इसके ऊपर। लेकिन वचन बताता है यीशु मसीह ने क्या किया? दियोमाय, ही पुट अ पिटिशन टू कॉन्टरैक्ट द लॉ सूट ऑफ सेटन अगेंस्ट पीटर। सेटन वांटेड पीटर टू रियली पेरिश जस्ट लाइक जूडस इस्करियोट वाज। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना की। मैं एक वचन देना चाहता हूं आपको, जल्दी से पढ़िए। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का एक वचन, वहां पे वर्ड है पैराक्लीटोस। वचन में लिखा यदि कोई पाप करे तो हमारा एक वकील है हेवन में, और वकील के लिए बैरिस्टर है, जिसके लिए वर्ड है पैराक्लीटोस, जो हमें एडवोकेट करता है। लेकिन एक खास बात आपको बताना चाहता हूं, पहला यूहन्ना 1:7 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, इफ वी वॉक इन द लाइट
as he is light, then the blood of his son Jesus Christ cleanses us from all sin. There is a condition. You have to walk in the light. I told you the light is Torah. The light is the word of God. You must walk in the light of the word of God. As you continue to walk in the light of the word of God, then the blood of Jesus becomes effective in cleansing you. Blood will only cleanse you when you walk in the light. If you don't walk in the light, you walk in the darkness. You live a sinful life and you plead the blood. Blood will not be effective. खून काम नहीं करेगा अगर आप बदकारी में जीवन जिएंगे, पाप में जिंदगी गुजारेंगे। जब आप रोशनी में चलेंगे तब लहू काम करेगा। खून बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में काम नहीं करता। यीशु मसीह के खून के बहुत से बेनिफिट हैं। यीशु मसीह का लहू लिविंग एंटिटी है। हालेलुया। और आपके लिए हेवन में आपका मददगार है, आपका सपोर्टर है, लेकिन आपका जीवन पवित्र होना चाहिए पृथ्वी पे, वरना खून आपके लिए काम नहीं करेगा। जो पाप अनकन्फेस्ड है, जिसको आपने अंगीकार नहीं किया प्रभु के आगे, प्रभु की करुणा नहीं मांगी, रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, वो पाप आपके विरोध में खड़ा होगा। और जो ये खता अगोरा है जो आप पे दोष लगाता है रेवलेशन 12:10 में, वो आपकी जिंदगी से खेलता रहेगा, आपकी जिंदगी को मारता रहेगा हेवनली कोर्ट में। उसका नाम है कत्ता हगोरा। वो लीगली आपके विरोध में खड़ा है। आपके जितने प्रोजेक्ट हैं, जितने ख्वाब हैं, आपकी जिंदगी के जितने सपने हैं, आपके जितने विजन हैं, आपकी लाइफ में जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर ने असाइनमेंट दे के आपको भेजा करने के लिए, उसके विरोध में खड़ा है शैतान। वो आपके कामों को रोक रहा है। हिज नेम इज कत्ता हगोरा। वो आपके बिजनेस को, आपके कारोबार को, आपके विजन को, आपके ड्रीम को, आपके दर्शन को, आपकी फैमिली को, आपके हर काम को अपोज करता है। वचन में लिखा है, यू आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ द डिवाइसेस ऑफ द डेविल। पहचानिए भाई और बहनों, पाप में मत जिए। थोड़ा पाप में, थोड़ा प्रभु में काम नहीं बनेगा। लताड़ देगा आपको वो हेवनली कोर्ट के अंदर। हालेलुया। सबसे पहली बात आज सीख लीजिए, पश्चाताप करके यीशु मसीह के लहू के नीचे जीवन गुजारिए, पवित्र आत्मा की आग से भरे रहिए और परमेश्वर के कलाम की ज्योति में चलिए। कत्ता हगोरा वो आपके काम में अड़ंगा नहीं डाल पाएगा। यीशु मसीह आपके संग होगा। यीशु मसीह कहता, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, दियो माए, आई पुट अ पिटिशन फॉर यू सो दैट Satan cannot destroy your life. हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, इस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे लगता है हम 10 सेशन करें तो भी कम पड़ेंगे। गॉड टॉट मी अ लॉट ऑन दिस। प्रार्थना का सबसे बड़ा स्वरूप है कोर्ट रूम। 82% वर्ड्स बाइबल में प्रार्थना के लिए जो हिब्रू और ग्रीक में और वल्गेट की लैटिन में यूज हुए हैं, वो सारे कोर्ट रूम की टर्मिनोलॉजीज हैं। प्रार्थना करना सीखना है तो कोर्ट रूम में आइए। वी विल कंटिन्यू टू लर्न। हम और सीखेंगे इसके विषय में। कल सुबह हम मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह हम इफ़ 9:30 हम इकट्ठे हों, मुझे नहीं मालूम आप जो लोग इंग्लैंड में हो आपके लिए पॉसिबल होगा, मे बी 10 o'clock हम इकट्ठा होंगे। आप सब लोग आइए एंड वी विल कंटिन्यू टू लर्न कि हाउ वी प्रे entering into the courtroom. What are the protocols of the courtroom? What are the laws? How we navigate the courtroom? Can we go in the courtroom or we can't go in the courtroom? What are the preparations that are required to enter into the courtroom? क्या तैयारियां करने पड़ेंगी हमें कोर्टरूम में जाके प्रार्थना करने के लिए? कोर्टरूम की प्रार्थना के आंसर ऐसे आते हैं, क्योंकि हर लीगल बाधा टूट जाती है। कत्ता अघोरा आपको अपोज नहीं कर पाएगा। तो ये सीक्रेट हम यहोवा के कलाम में से सीखेंगे। आपको मालूम प्रभु ने क्या कहा जकरिया के विषय में? कल सुबह 10 o'clock वील कंटिन्यू स्टडिंग फर्दर। आइए आंखें बंद करें, फिर से प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं भाई परमजीत के लिए जिसे मेनिंजाइटिस है, एक बार फिर आपके आगे लाते हैं। प्रभु, हम कोर्ट रूम में इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि ये लोग चंगे हों, उनकी बेटियां चंगी हो जाए जिन्हें ट्यूबरक्लोसिस है। प्रभु, हम बहन रेखा बलबीर मसीह के लिए सभी प्रार्थना करें, बहन रेखा के लिए सब मिलके। परमेश्वर उसे सच्ची तसल्ली दे इस बहन को। शी लॉस्ट हर बेबी, हर चाइल्ड डाइड बिफोर द चाइल्ड केम इनटू द वर्ल्ड।
So she's a broken hearted lady. Let's pray that God of mercy, love, and kindness will come down upon her like balm of Gilead and restore her. Whatever damage has happened, her womanhood has been damaged on the inside, that the Lord will repair every damage. परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में रेखा बहन को छू और अपने लहू की धार के नीचे उसे छिपा। प्रभु, हम भाई पवन विर्क ने जो प्रार्थना के लिए कहा था उसे आपके आगे स्मरण करते हैं, आपका लहू लगाते हैं। भाई राकेश कुमार महतपुर से उसकी प्रार्थना को आपके आगे स्मरण करते हैं। यीशु मसीह, हम भाई प्रभदीप के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, उसके आने वाले जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, और भी जिन लोगों की प्रार्थना की विनती है हम सबको तेरे आगे उठाते हैं। प्रभु, हमें कोर्ट रूम के भेद सिखाइए, प्रार्थना करने के प्रोटोकॉल सिखाइए। प्रभु, चतुरता की बात नहीं कर रहा मैं, कनिंगनेस, क्लेवरनेस प्रार्थना में। प्रभु, कैसे हम सीख सकें इन भेदों को ताकि हमारी प्रार्थना इफेक्टिव हो। आशीष करें प्रभु, आपके लहू में छिपाएं, आपका नाम ऊंचा हो। यीशु मसीह के जलाली नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। कल 10 o'clock प्लीज़ आ जाइए सभी। वी लर्न ऑन द कोर्ट रूम्स। There is so much to learn from the Word of God. I have been just learning and learning and learning. Hallelujah. Let's all learn. There are divine secrets that God will unravel, and we will learn how to pray effectively. Hallelujah. Through the wisdom that God will pour out from His Word. प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। हालेलुया। सबकी प्रार्थना विनती है प्रभु यीशु मसीह आपके हजूर में पहुँचे। जो लोग चाहते हैं प्रार्थना के लिए विनती देना, प्लीज़ आज आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरी फेसबुक पे मैसेंजर में। जस्ट सेंड मी अ मैसेज, टुमारो विल प्रे। हालेलुया। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। द लॉर्ड ब्लेस यू। इट हैज़ बीन वंडरफुल हैविंग स्पेंड टाइम विद यू। मैं आशा करता हूँ आपको आशीष मिली होगी। आप अपने कमेंट लिखिए, बताइए हाउ द वर्ड हैज़ बीन ब्लेसिंग यू एंड हाउ हैव यू बीन एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जस्ट ओनली फॉर हिज ग्लोरी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।